Morning student, welcome you all. So how are you all? Hope you all are very great. So today I am going to teach you a letter writing. So as you all know, in term first we have already done the so many letters, informal letters, formal letters. So in term second we are going to study about the formal letter only, but in this time we are going to read about the inquiry letter or some order letters. All right, so in this particular video we will start the inquiry letter. So how to write a letter, what is the format of this kind of letter, and the examples we will see in this particular video. So let's start the inquiry letters. So, what we need to write an inquiry letter, let's see. The first thing, the agenda. The agenda behind writing letter of inquiry is to collect information about something or someone. So, see, as you all know that the title says inquiry, to inquire someone for something. It means कि जब आप inquiry करते हैं, it means to collect information about something or someone. That is called a inquiry. So next is, an inquiry letter is usually written to gain some information फ्रॉम द रिसिपेंट, यानी जिसको रिसिपेंट, हु इज द रिसिपेंट हियर, जिसको लेटर मिल रहा है, उससे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसीलिए हम इंक्वायरी लेटर्स लिखते हैं. नेक्स्ट इज, इन दिस लेटर द राइटर शुड मेंशन व्हाई ही एक्सपेक्ट्स द सेंडर टू गिव हिम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. सो इस लेटर में हम ये भी देखते हैं कि लेटर को, मतलब हम जब सेंडर को भेज रहे हैं तो किस तरह की इंफॉर्मेशन हमको भेजनी चाहिए, यानी किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता है सेंडर कि उसे भेजनी चाहिए रिसिपेंट को, जिससे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन वो चाह रहा है वो उसको ईजिली मिल सके. नाउ लेटर ऑफ इंक्वायरी. द फर्स्ट इज इंक्वायरी. Inquiry letter should be written like a formal letter. So as you all know that inquiry letter, it's a kind of a formal letter. It must include the sender contact details, address or email address at the beginning of the letter. Means address हम कहाँ put करते हैं, at the beginning of the letter. और जब beginning of the letter में we always and we must include the sender address, सेंडर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल, ये सब हमको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी डिटेल्स में क्या क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई. ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग इज, लेटर ऑफ इंक्वायरी मस्ट कंटेन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी आइटम. यानी वॉट एवर वी हैव टू नो वी जस्ट पुट इन आर लेटर कि ये चीज़ें हमें जानिए, ये चीज़ें हमें चाहिए, तो वो इंक्वायरी लेटर में आप पुट करेंगे. नेक्स्ट, it should contain the date and address of the receiver. यानी whoever received the letter, उसको आपको डेट और उसकी उस दिन की डेट और एड्रेस यू हैव टू मेंशन इन दिस लेटर. नेक्स्ट इज, add the subject of the letter precisely to give some idea of what will be the discussed in the letter. Yani you have to add subject also in this letter format, because through the subject the मतलब जो रिसीवर है, ही और शी गेट टू नो कि जो लेटर है वो किस पे डिस्कस्ड किया गया है. नेक्स्ट इज, मेक श्योर टू एड अ सैल्यूटेशन at the start and your signature, name and the designation at the end of the letter. ये सारे लेटर्स में होता है, हमारे जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें ये कंपल्शन है कि सैल्यूटेशन इज मस्ट बी देयर. लाइक हाउ टू स्टार्ट, डियर सर, डियर मैडम, तो सैल्यूटेशन इज मस्ट, एंड द कंक्लूजन लाइन means the complimentary add should be there, like designation, name and signature at the end of the letter. Next thing, it should be written concisely and clearly. ऑफिस कि जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो बहुत नीट एंड क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लेंदी भी नहीं होगा, और वेरी कंसाइसली एंड वेरी क्लियरली. मेंशन द रीजन ऑफ इंक्वायरी लेटर. ऑब्वियस है कि जब हम किसी को लेटर भेजेंगे तो उसमें हमारा जो रीजन है वो भी हम उसमें मेंशन करेंगे कि व्हाई वी रोट दिस लेटर. Now the suggestion to write an inquiry. So there are some suggestion
कि आपको क्या क्या इंक्वायरी लेटर में, जो ऑलरेडी पहले है कुछ और चीज़ें ऐड करिए, जस्ट हम रीड आउट कर लेते हैं उसको भी. फर्स्ट इज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, योर ऑर्गेनाइजेशन. सी, जब आप लेटर लिख रहे हो, किसी को भी किसी से इंक्वायरी लेने के लिए, तो पर्टिकुलर पर्सन को ये पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन है जो उनकी इंक्वायरी ले रहा है. तो मेक श्योर कि अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो मेरे बारे में मेरा नेम होगा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी उस लेटर में मेंशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द थिंग्स और सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी. यानी जो भी थिंग है, जो भी सब्जेक्ट है इंक्वायरी का, उसकी पूरी डिटेल्स आप प्रोवाइड करवाएंगे टू द रिसीवर. If you require a detailed information, write your questions accordingly. अगर आपको बहुत सारी information दी चाहिए, you have not only one question, you have so many questions, तो you just आपको accordingly उसके mention करना पड़ेगा, डिटेल में information देनी पड़ेगी. So if you require the information by a particular date, then do mention in the letter. अगर आपको suppose information चाहिए, जैसे आज letter लिखा और आपको information कल तक की date में चाहिए, एनी हाउ इन एनी कंडीशन, तो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट मेंशन इन द लेटर कि सो एंड सो मेरा क्वेश्चन है एंड आई वांट रिप्लाई इन सो एंड सो डेट, एंड एट द एंड थैंक देम फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन एट द एंड. डोंट फॉरगेट कि पुट थैंक इन एट द एंड ऑफ द लेटर बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी. Now this is the format of inquiry letter, that how to write a letter. Inquiry letter हो या order letter हो, कुछ सेम ही रहता है, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस हो जाती है. Address given, और अगर if in your question is address is already given, that write the address or some examination hall, then put date, then आपको put date करनी है, then the principal, name of the institution और address आपको mention करना है. राइट. सो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी. गिवन है तो ओके, नहीं गिवन है तो आप कुछ भी एक रेडी कर लीजिए अपने मन में कि हाँ कुछ यही करनी है. अगर इंक्वायरी लेटर तो मुझे ये एड्रेस पे पेस्ट करना है, और अगर ऑर्डर लेटर है तो मुझे ये एड्रेस पेस्ट करना है. दैट्स इट. नाउ डियर सर एंड मैडम, दैट इज अ सैल्यूटेशन. Then after the address and designation and name of the sender, after that you just put dear sir or madam. देखो, जब मैंने आपको टर्म फर्स्ट में लेटर राइटिंग करवाई थी तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं कि लेटर राइटिंग कैसे हुआ है, वो वहाँ से भी आप बिल्कुल सेम है, नथिंग इज चेंज. थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ. देन सब्जेक्ट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इंक्वायरी रिगार्डिंग. तो सब्जेक्ट आप जब इंक्वायरी के लिए पूछेंगे तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि इंक्वायरी रिगार्डिंग. सो इट हेल्प्स यू लॉट. अब नाउ द बॉडी ऑफ लेटर. सो बॉडी ऑफ लेटर में आप पूरी चीज़ें लिखेंगे, बट देयर आर 3 पैराग्राफ जो आप ऐड कर सकते हो इन योर राइटिंग. तो पैरा नंबर 1 मीन्स बिगनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर, हाउ टू स्टार्ट द लेटर. तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हो, आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग, देन आपका लेटर होगा. ये मैं आपको बताऊंगी अभी विद एग्जाम्पल्स के साथ कि हम हाउ टू यूज दीज लाइन्स इन अ लेटर. नेक्स्ट पैरा, विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, यानी जो भी आप इंक्वायरीज लेना चाहते हैं वो आप उधर मेंशन कर देंगे. यानी सी, फर्स्ट पैरा में था ना कि आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके बेसिस पे आप उस फर्म से या उस इंस्टीट्यूशन से कुछ इंक्वायरी चाहते हैं, तो आप ये पैरा नंबर 1 में लिखेंगे कि आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग सो एंड सो, आई मतलब आई आप लोग, आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, यानी मेरी कुछ इंक्वायरीज हैं, मेरी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ. नाउ द पैरा सेकेंड, ये तो आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, राइट. नाउ द पैरा सेकेंड, आप अपनी इंक्वायरीज के बारे में लिखेंगे, लाइक ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. सपोज कोई कोर्स का है तो उसकी ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बैच, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क टू द रेसिपिएंट. नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरा. लास्ट पैरा में आप क्या पूछेंगे, लास्ट पैरा में यू हैव टू राइट दीज लाइन्स और इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड सेंड मी द ब्रोशर. इसे ब्रोचर या ब्रोच्यूर नहीं बोलेंगे, इट्स अ ब्रोशर along with the enrollment form so that I could register in the course at the earlier. Particular course के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे I will be grateful.
राइट, क्या मुझे एनरोलमेंट फॉर्म के साथ ब्रोशर्स भी भिजवा देंगे, एंड सो मैं क्या कर पाऊंगा, जल्दी से कोर्स का रजिस्ट्रेशन करवा पाऊंगा. एंड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आ जाएगा, योर नेम, योर डेजिग्नेशन एंड जस्ट साइन. That's it. So this is the format of inquiry letter, and according to this format you have to write, or you should write your inquiry letters. So let's see one example. Here's the question: you are Anshul or Anshika. If you are a boy, then you are Anshul. If you are a girl, then you are Anshika. So a student of class 10th and residents of 56D Ring Road, ITO, New Delhi. So this is your address. So address is given. See, address is already given in your question, and wants to be choreographer. राइट, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर. तुम क्या बनना चाहते हो, कोरियोग्राफर, राइट, और क्या चाहिए, कोरियोग्राफर. तो अब तुम्हें क्लास 10th के में हो तुम, आपका रेजिडेंस ये है, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोरियोग्राफी. अब आपको एक लेटर लिखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोरियोग्राफी के डायरेक्टर को, जो कहाँ पे है, नोएडा में है, ये भी ऑलरेडी गिवन है. सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कोर्स. अब आपको मतलब तुम कोरियोग्राफर बनना चाहते हो. अब आपको कोरियोग्राफर बनना है तो आपको कुछ तो आना चाहिए. तो आप एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी के डायरेक्टर को आप एक लेटर लिखेंगे, जो कहाँ पे है, नोएडा में है. और आप क्या बताएंगे कि आपके जो कोर्स है उसके बारे में बताएंगे. आप उनसे क्या क्या पूछेंगे, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स जो भी आप चाहते हैं. तो दिस इज योर क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन और द बेस ऑफ योर क्वेश्चन आप इसके आंसर को पुट करेंगे, मतलब लेटर लिखेंगे. देखो अब कैसे. फर्स्ट हमको क्या लिखना होता है, सेंडर एड्रेस. सो सेंडर एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन. हमारा सेंडर एड्रेस क्या है, 56D रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली 106, न्यू दिल्ली का पिन कोड हम मेंशन करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द डेट. जो भी डेट, जिस भी डेट को, जैसे सपोज आज का लिख रहे हैं तो हम आज की डेट मेंशन कर देंगे. यहाँ पे 1 जुलाई लिखा हुआ है, अगर आज 9th है, 9th क्या, आज 9th ही है, तो हम यहाँ पे 9th लिख देंगे. 9th फरवरी है, और फरवरी और 2022. तो आज की डेट में अगर हम लिख रहे हैं तो आज की डेट हमने डाल दी. अब हम किसको लेटर लिख रहे हैं, हु इज द रेसिपिएंट हियर. सो हियर द रेसिपिएंट इज द डायरेक्टर. कहाँ का डायरेक्टर है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, यहाँ का डायरेक्टर है. अब नोएडा, हमें वी ओनली वन थिंग दैट दिस इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन नोएडा. तो हम यहाँ पे नोएडा मेंशन कर देंगे, और हमने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया कि सेक्टर नंबर 16 पे है, और ये पिन कोड अपने मन से यहाँ पे लिख दिया. तो दैट इज हाउ वी जस्ट स्टार्ट द इंक्वायरी लेटर. दैट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस लेटर. सो ये हमने पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया. आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. सो हमको क्या पुट करना है, सैल्यूटेशन. तो सैल्यूटेशन में हमने डियर सर लिखा. देन सब्जेक्ट लिखना था. मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट में आपको एक वर्ड बताया था, इंक्वायरी रिगार्डिंग, राइट. ये इंक्वायरी रिगार्डिंग हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट. अब इंक्वायरी रिगार्डिंग, उसके आगे आप जो भी इंक्वायरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे को किसकी इंक्वायरी लेनी, कोर्स इन कोरियोग्राफी. तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोर्स इन कोरियोग्राफी की हमें इंक्वायरी लेनी. बट सब्जेक्ट में इंक्वायरी रिगार्डिंग हम सबसे पहले ऐड कर देंगे, वॉट एवर द क्वेश्चन इट इज. सो नाउ रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट. हमने फर्स्ट लाइन में हमने अब स्टार्ट करेंगे हमारा बॉडी लिखना, बॉडी ऑफ द लेटर. तो बॉडी ऑफ द लेटर में हमने लिख दिया रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट, मीन्स आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टाइजमेंट भी आप लिख सकते हैं, जो हमने पैराबल में मैंने आपको बताया था, और आप ये भी लिख सकते हैं. द कोर्स इन कोरियोग्राफी ऑफर्ड बाय योर रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट. I want to state that I am currently in class 10th and preparing for my final exam. किसकी प्रिपेयरिंग कर रहा है, ये फाइनल एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग कर रहा है. तो इसके लिए इनको आपके इंस्टीट्यूशन में जो कोरियोग्राफी है उसके बारे में. तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड आई वांट टू टेक इट एज अ करियर. अब ऑब्वियसली कोरियोग्राफर किस में बनते हैं, डांसिंग फील्ड में. सो जो भी लेटर लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी डांसिंग स्किल्स, मेरे को डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो आई वॉन्ट टू बी अ कोरियोग्राफर, और आई टेक इट एज अ करियर. सो I am also given to understand that this institute is
by far the best so far as choreography is concerned. So कह रहे हैं जैसी choreography mainly concerned है, the institute भी better है for choreography. So I would very much like to be part of it. मतलब तो मैं इस institute का एक part बनना चाहता हूँ. Kindly send me the prospectus and the application form. अब क्या कह रहे हैं कि मुझे एक तो prospectus और जो application form है वो send कर दीजिए, and I would be highly grateful. अब देखो वो highly grateful last line हमने third paragraph में जो पढ़ा था वो लिखा है, I would be highly grateful if you could provide me with the following information. If we need so many inquiry, right, if we know so many information, तो हमको कुछ इस तरीके से लिखनी पड़ती है जो लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ यू कुड प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है. अब कैसे, लेट्स सी. फर्स्ट, द डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम फैकल्टी, मतलब जो डिपार्टमेंट और प्रोग्राम फैकल्टी उनके बारे में. फंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी, स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कितनी योग्यता पात्रता योग्यता की जो पात्रता है वो क्या होनी चाहिए, एंड हॉस्टल फैसिलिटीज नॉट देयर इज देयर और नॉट, ये आपको पता होना चाहिए. तो दीज आर सम क्वेश्चन जो आपको जानने हैं. So now the end line is kindly send me the brochures along with the enrollment form at the earliest so that I could register myself of the course. तो ये सब मुझे आप प्लीज भिजा दिए. बट इसके एंड में एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट इज एंड में योर नेम एंड योर सिग्नेचर, दैट्स इट. So this is how to write an inquiry letter. So I hope you all have must understood ki how what is the format of inquiry letter and how to write it. All right, so thank you for watching this video.